Students, now we will discuss some important features of medieval period. Like there are medieval period was divided into two parts. First, early medieval period, and then second, later medieval period. Early medieval period was from 8th to 13th century, we can say, and after that till 18th century was called later medieval period. Now some other rulers came in India. Some other rulers like Mughal rulers came from outside and settled in India. That is the second feature. Now the third, that foreign cultures began to influence India, means their other rulers, if they are coming from other sides, then they influence their foreign culture here. Then sources from where we are getting the knowledge about it. Then what are the sources? The sources which we are getting, that are the archaeological literary sources. Archaeological जो भी inscriptions में type होता है, then written जो होता है वो literary में count होगा. Then many sources like manuscripts and epigraphic, numismatics, these are the sources from where which we are getting the knowledge regarding with that. Now the major historical trends. What were the major historical trends? Now we will discuss about that. That old and new religions, means many rulers came. Some Greeks also came. Greek invaders also came in India. They influence our India also. Who came to India in the ancient period? वो Greeks जो थे वो हमारे इंडिया में ancient time पे आए थे. Means old और new religions का जो combination है, we can see here. Like they were followed by Indians religions, Hindustan और Buddhism. Means Hindustan भी यहाँ prevalent था and Buddhism also. They adopted the Indian culture and dresses. मतलब जो ग्रीक्स आए थे उन्होंने इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट किया, ड्रेसेस को अडॉप्ट किया. बट द टर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स, कौन कौन से? टर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स who came to India during the medieval period brought their own culture and religion, Islam with them. यहाँ पर ग्रीक्स ने तो हमें एक्सेप्ट कर लिया, हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर दिया, ढाल दिया. लेकिन जो मुगल्स आए, जो टर्क्स आए एंड देन अफगान्स आए, उन्होंने नहीं ढाला. उन्होंने अपना इस्लामिक कल्चर जो है वहां से लेकर यहाँ पर स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया. देन they adopted Islam dharm. They were saying that you should also do the same. Islam spread in India. Islam धर्म को स्प्रेड किया गया इंडिया में. Then Sikhism, a new religion was born also. सिख धर्म का भी यहाँ पर born हुआ. Then सिख धर्म को भी हम जानने लगे. Then later Christianity also spread in India. Christianity भी आई. Means इंडिया के अंदर कौन कौन से religions आए, old और new religions. old की बात करते हैं तो already हमारा कल्चर आएगा, and अगर हम new की करते हैं then Greeks का आएगा. ग्रीक्स ने तो हमारा धर्म एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया. देन मुस्लिम रूलर्स का आ गया, इस्लामिक हो गया, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी हो गया. दीज टाइप्स ऑफ रिलीजन्स कैम इन इंडिया. Then many changes took place in Hinduism, but it retained the major religious system which the Indian society was based on. Now first पॉइंट क्या लर्न किया? ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. तो यू नीड टू लर्न ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. ओल्ड में आपका इंडिया का आ जाएगा, न्यू रिलीजन्स जो भी बाहर से इन्वेटर्स है उन्होंने स्प्रेड किया. जो सेकंड फीचर है हिस्टोरिकल ट्रेंड्स का वो ये है कंपोजिट कल्चर. कंपोजिट कल्चर मीन्स मिक्सचर ऑफ द कल्चर्स. मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शंस like between old and new religions, a composite culture began to start. Means the develop in India. It is developing in India. On that it was on that time that many religions came in India. It reflected itself in languages, literature, painting, and architecture and sculpture. And it is still an important feature of our heritage. Means our heritage, हमारी विरासत जो है हमारे इंडिया की, उनका important features जो है that is this. तो सेकंड पॉइंट, अ कंपोजिट कल्चर. फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू लर्न दैट ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स दोनों आए. कंपोजिट कल्चर मीन्स मिक्सचर ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज. देन थर्ड पॉइंट यू नीड टू लर्न इन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स में आपको थर्ड पॉइंट जो है वो लर्न करना है कि स्टेबल पीस. ईच रिलीजन वांट्स टू स्टेबल देयर पीस. मीन्स नो रिलीजन in his cultural values and religious values, it is not described that कोई भी ऐसा धर्म है जो शांति नहीं चाहता. हर धर्म का जो एक थीम होता है वो यही होता है, that is that हर धर्म में पीस होना चाहिए. Then some of the Delhi Sultanate rulers and great Mughals were able to provide stable peace for many countries. बहुत सारे कंट्रीज में मुस्लिम या इस्लामिक कल्चर ने या दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने स्प्रेड किया पीस को. देन फोर्थ, सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट. सूफीज्म क्या था और भक्ति मूवमेंट क्या था? भक्ति से ही डिराइव हुआ भक्त. मीन्स जो किसी भी आइडियल को वर्शिप, आइडियल को अपना स्थान देकर उसकी भक्ति करते हैं, दैट इज कॉल्ड भक्ति. मतलब ये जो आंदोलन चले थे सूफीज्म के, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले या फिर भक्ति को मानने वाले, वो इसी यहीं से मिडिवल पीरियड से स्टार्ट होने लगे. Then what happened? Two great religious movements started. सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट, ये दोनों डेवलप्ड हुए इंडिया में.
and then they helped in bringing about understanding between Hinduism and Islam. दोनों धर्मों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने लगे. Emphasis was placed on love, brotherhood, tolerance and unity of God. हर किसी ने किस पर जोर दिया कि यूनिटी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए गॉड में, पीस, ब्रदरहुड, टॉलरेंस, दीज आर द मेन की फीचर्स of this Bhakti movement and Islam, that Sufism and Bhakti movement. Now 4 points we have covered: old and new religions, second is a composite culture, third one is a stable peace, and fourth one is Sufism and Bhakti movement. These are the historical trends. Now fifth point we will discuss that social, economic and पॉलिटिकल चेंजेस, कि समाज में क्या चेंजेस हुई, पॉलिटिक्स कैसी हुई, मतलब राजनीति, इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक यानी पैसे से रिलेटेड, इनमें क्या चेंजेस हुए ऐसे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट. एज एन अर्ली एजेस आवर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू मैनी कास्ट एंड सब कास्ट. पहले एंशिएंट इंडिया में हमारी सोसाइटी को कास्ट सब कास्ट में डिवाइड हुआ था. मोस्ट ऑफ द जातीज देयर ऑन रूलर्स रिगार्डिंग मैरिज एंड बिहेवियर ऑफ देयर members. Then in the villages the panchayat still settled disputes and collected taxes. पंचायत भी थी उस टाइम. There was a general decline in the status of women. Women का status decline हो गया. Polygamy, पर्दा सिस्टम, सती वर also the customs which marked their low status. ये सारे थे. लो मतलब फीमेल की जो कंडीशंस थी वो सही नहीं थी, वी कैन से. और देन संस्कृत में द वर्ड राजन मीन्स किंग एंड पुत्र मीन्स सन, मतलब राजा का पुत्र, राजन पुत्र, वी कैन से राजपूत लैंग्वेज. द टर्म राजपूत इंक्लूडेड नॉट ओनली द रूलर्स बट द मेंबर्स ऑफ हिंदू मिलिट्री कास्ट क्लेमिंग क्षत्रियस डिसेंट्स. देखो उस टाइम जो थी 4 कास्ट प्रिवेलेंट: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्र. जो ब्राह्मण से था वो अपर कास्ट के यानी लोग मानते थे अपने आप को, देवर डोमिनेट, देवर समटाइम्स क्रिटिसाइजिंग द शूद्रास आल्सो. द सेकंड टाइप क्षत्रियस, दे वर क्लेमिंग दैट दे आर बिलोंग्स फ्रॉम द राजपूत फैमिलीज, दे आर रूलर्स, दे आर किंग्स, दे वर कॉल्ड नॉन एज pretend and proclaim themselves as the kshatriyas. The third one was Vaishya. Vaishya means होता है traders, व्यापारी. And fourth one was Shudras. Means ये तीन चारों में कैटेगरीज में जो थी इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड थी. और इसके अलावा राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर. धीरे धीरे जब ये सब आपस में अनटचेबिलिटी को लेकर आपस में किंग्स, रूलर्स, मुगल एम्परर्स आते हैं, हिंदू सोसाइटी आपस में जब ये लड़ना स्टार्ट करती है, देन ऑन दैट टाइम लास्ट में आते आते यहाँ ब्रिटिशर्स भी ऑक्यूपाइड करने लगे. मतलब स्टार्टिंग ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया में कौन आया था? डच, पोर्टुगीज. डच आए थे, पोर्टुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कौन आने लगा? यहाँ पर ब्रिटिशर्स आने लगे स्टूडेंट्स पे. लास्ट में आते आते ब्रिटिशर्स ने अपना कंप्लीट मोनोपोली स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में. दैट्स ऑल रिगार्डिंग विद दिस पॉइंट. सो नाउ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री फॉर द मिडाइवल पीरियड. हमें मिडाइवल पीरियड की नॉलेज कहाँ से मिलती है? हमें कैसे पता चला कि मिडाइवल पीरियड में ऐसा होता है? देन व्हाट आर द सोर्सेस? स्टूडेंट्स वी कैन ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सोर्सेस की कुछ फॉरेन कल्चर्स थे यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया, एंड कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे, मतलब हमने कुछ इंस्क्रिप्शंस देखे, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स थी विच वर द ओल्ड इंस्क्रिप्शंस रिटन बाय अ पर्सन, पाम लीव्स पे लिखी जाती थी. और ये सारे जो है लिटरेरी सोर्सेस है. न्यूमिस्मेटिक्स एक कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स में राजा के बारे में या फिर कुछ थोड़ी सी डिटेल दे दी. न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो कॉइन्स हैं. ये सारे सोर्सेस ही हैं जिनके बारे में आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, न्यूमिस्मेटिक्स इनके बारे में हमें पता चलता है. दीज आर द कॉइन्स, सो डोंट वरी अबाउट देम, दैट आर वेरी सिंपल. और स्टडी ऑफ कॉइन्स का आपको एक पिक्चर दिया हुआ है. सी स्टूडेंट्स, ये कॉइन्स दिए हुए हैं आपको. टिपिकल इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोला पीरियड इंस्क्रिप्शन है, ये कॉइन्स है. इन्हीं सबको हम पढ़ के, ये सन टेम्पल को ना, तो ये आर्कियोलॉजिकल हो गया बिकॉज वी कैन टच एंड लिटरेरी में रिटर्न आ गया. देन न्यूमिस्मेटिक्स में कॉइन आ गया. तो ये सारे सोर्सेस हैं जिनके बारे में हमें अर्ली मिडिवल पीरियड के बारे में और उसकी नॉलेज जो है हमको मिलती है. देन लिटरेरी सोर्सेस में भी वही सब रिटर्न आ जाते हैं. एंड उसके बाद जो है रॉयल ऑटोबायोग्राफीज भी होती है. कुछ रॉयल लोग हैं जैसे फिरोज शाह तुगलक है. फिरोज शाह तुगलक है, रोट ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी वो होती है जैसे कोई भी पर्सन अपने बारे में अपनी स्टोरी लिखता है, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी. पर्सन इज राइटिंग अबाउट हिमसेल्फ, दैट इज दिस इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी. अगर कोई पर्सन के बारे में कोई दूसरा पर्सन लिखता है उसकी, जैसे, तो बायोग्राफी कहलाती है. एंड फुटुफहट एंड फिरोज शाही जो है इसके बारे में है, उसने लिखा था. बाबर रोट हिज मेमोरीज, तुगलक आई बाबरी. ये सब आपको बेटा नाम लर्न करने पड़ेंगे कि किसने क्या लिखा था. तो रॉयल ऑटोबायोग्राफीज जो है ये दीज आर द बुक्स, सम बुक्स रिटन बाय देमसेल्व्स एंड रिटन बाय अदर पीपल्स आर नोन एज बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफीज. यू नीड टू लर्न देम ऑल्सो.
ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी आते हैं कुछ ऐसे, इसमें आमेर राजपूत चीफ्स आता है, उसने प्रिजर्व करके रखा था मैनी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग देयर करस्पॉन्डिंग विद मुगल रूलर्स, ठीक है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मतलब जो पुराने ऑफिस में ऑफिशियल से रिलेटेड जो भी वो फरमान या कुछ भी जो लिखते हैं। एंड देन क्रॉनिकल्स जो थे जियाउद्दीन बरानी का नाम आता है, 14वीं सेंचुरी का क्रॉनिकर होता है, तो जियाउद्दीन बरानी को आपको लर्न करना है। फिर उसके बाद लिटरेरी वर्क में राजतरंगिणी जो है उसको पृथ्वीराज रासो बाय काल्हना, राजतरंगिणी तो काल्हना है ना, और एक एपिक है पृथ्वीराज रासो, वो है चंद्रबरदाई। ये सारे नाम जो है वो बेटा आपको लर्न करने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं, सो दैट यू कैन राइट। और अकबर के बारे में भी लिखता है, अबुल फजल जो है वो लिखते हैं एनआई अकबरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, अबुल फजल एनआई अकबरी। तो दीज आर सम रिकॉर्ड्स that were written on that time. Then accounts of foreign travelers, बहुत सारे foreign travelers भी आए इंडिया में, they visited in India many times. India attract the attention of many foreign travelers. यहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर है, यहाँ का रिलीजन है, यहाँ पर डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस हैं, एंड यहाँ का जो गोल्ड है, many things attract foreigners to come in India. They just want to visit India. And Marco Polo, Venice, from Venice, he was from Venice. Marco Polo belongs from Venice. He visited in India in the 13th century. Sorry, 13th century में उसने हमारे इंडिया में विजिट किया था और उसने देखा था ही बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग अकाउंट जो है मार्को पोलो यहाँ पर छोड़ के गया है। और वो किसके बारे में, सदन पांड्या के बारे में, कि सदन पांड्या का वो किंगडम कैसा था, और वो वाराणगल नाम के प्लेस पे भी विजिट करता है, और वो गुजरात के मर्चेंट्स के बारे में भी बताते हैं कि किस तरीके से गुजरात के मर्चेंट्स जो हैं वो वर्क करते हैं और कितना इंटरेस्टिंग है इनका काम करने का तरीका। तो मार्को पोलो है, इसके अलावा इब्न बतूता वाज द नेटिव मोरक्को एंड विजिटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, वो कब आया था, ये सारी जो स्टोरी है वो आप नेक्स्ट चैप्टर जब मिडाइवल पीरियड का स्टार्ट कर चुके हो तो उसके बाद हमें ये सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो धीरे धीरे जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे we will study about them, each and every ruler will come, then in with a very describing way I will teach you then whatever the things came in India, who visited in India, what were the king, who were the kings, and whose dynasty was famous, who was a famous ruler of Mughal dynasty. That's but today this is our end of chapter 1 and we have studied about the sources of medieval period कि कहाँ से मिलता है हिंदुस्तान को, इंडिया को, के नेम्स कौन से हैं, you need to learn the names of India, कि हम भारत को किस किस नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको सोर्सेस जो है वो आपको पढ़ना है कि कहाँ कहाँ से हमें नॉलेज मिली। इसके अलावा कंपोजिट कल्चर, न्यू एंड रिलीजन्स जो है किस तरीके से मिक्सचर हुआ, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू लर्न इन दिस चैप्टर। दैट्स ऑल रिगार्डिंग विद दिस चैप्टर. Now we will discuss the next topic in second chapter.